Respected students, welcome back everyone. Today's video is about Power BI real-time project end-to-end part 2. Okay, so the series which we have brought about Power BI real-time projects, how it is there from BA team, the way we create BRDs, or QA team, the way they validates our data, or we Power BI team or BI team, the way we create the our report, and from database team, what view we get or how we validate the numbers. Okay, everything properly I have told you in first part. This is the second part. In second part, we are going to create one more pages where as per the client's requirement, we will check everything. Okay, we will try to replicate everything what client have asked. And also I will tell you how to check that whether our data is correct, what we have represented in our Power BI report, whether it is correct or not. Okay, so everything will be discussed properly. Also I have changed the BRD as per the requirement. See, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स है, 5 to 6 क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स आर देयर. एज पर दैट वी विल डू इट in real time. BRDs or BRS document which are there, they are either in Excel or MS Word also. Mostly Excel are there because the reason is in Excel they can show you proper mapping. BA team, business analyst team, they can show you properly mapping what are the database column names and what the column names they need in our Power BI report and filter as well. Okay, so Excel is mostly used, but sometimes MS Word is also used. When I work in my previous projects, now some of the BRDs were there in Excel and one or two BRDs were there in MS Word also. So that's the reason why I told you. So these are our clients' requirement. We will try to create the Power BI report properly, whole page, and also we will check our data. Okay, whether it is correct or not in our database. What is our database right now? It is SQL. Sometimes it can be Snowflake also or Azure, anything it will be there. So let's try to create report. Okay. ठीक है. So we have hidden this visualization and data pane. We will open it. ठीक है. So what was the first requirement? First requirement was number of employees in region. And one more thing. Again, you will get a sample report from client and BA team. Okay. So I have not created the sample report for this page. For this first page, what we have created now, first page. See, I have created this sample report or sample page for you. But for this, I have not created. Okay. So you are going to get sample report either from client or from your business analyst team. Business analyst team is also known as SME team also. Okay. So the first requirement is number of employees by region. ठीक है. So now it is there in our so again what I have told you, data understanding and data reading. जब आपको प्रोजेक्ट मिलेगा ना, सॉरी, जब आपको डेटा मिलेगा ना, जब आप ये सब टेबल्स व्यूज वगैरह फेच कर रहे हो एसक्यूएल से, तब आपको ये टेबल नेम, कॉलम नेम यहाँ पर भी आप देख सकते हो. यू कैन ऑल्सो चेक इन योर डेटा पेन ऑल्सो व्हाट आर द टेबल नेम्स, what are the column names. Okay, everything you have to check, you have to read, you have to understand the data properly. At least when we create story in Jira na, 2 hours of story, 2 hours of subtask we are creating only for understanding data reading, to connect with dev team or BA team and understand the view or store procedure. ओके, इसके लिए हम 2 hours देते, 2 to 3 hours. समटाइम्स इफ द डेटा इज बिग देन वी गिव मोर देन 1 day ऑल्सो, क्योंकि डेटा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. डेटा आपको रीड करना, मतलब ये अकाउंटेबल है, ये कैंपेन्स का है, ये केसेस का है, केसेस पे हमने पेज 1 बनाया था, ये अपॉर्चुनिटीज का है. ठीक है, ये आपको ऐसा प्रॉपरली, हाँ, अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड ऑन क्लोज डेट. ठीक है, अभी ये बजट, बजट पे हम बहुत देखने वाले हैं. मतलब आपको समझ में आ रहा है कुछ, तो बजट वगैरह है यहाँ पे. यहाँ पे देखो स्टेटस है, 3 स्टेटस है फिर आपके पास. ठीक है, ओपन, लॉस्ट, वोन वगैरह ऐसा. तो डेटा अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके वजह से जब आप ये रिक्वायरमेंट, व्हेन यू विल रीड दिस रिक्वायरमेंट ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बाय रीजन, देन यू विल अंडरस्टैंड, अरे हाँ, वी आर हैविंग वन कॉलम ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. ठीक है, और द एम्प्लॉइज और रीजन कॉलम वी आर हैविंग. सो यू विल अंडरस्टैंड, हाँ, वी आर हैविंग दैट इन आवर अकाउंट टेबल. ठीक है.
like this. So data understanding, data reading is the most important part. So now we will take tree map. Then we are having see number of employees we are having, and again region we are having. So we will pass it here like this. Now you can give heading as per you. ये लेजेंड आप ऑन कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कलर आपको जो भी आपके, फॉर एग्जांपल अभी ये ब्लू अच्छा दिख रहा है, बट यहाँ पे हम येलो दे देंगे, ठीक है, इसको रेड, और जो आपको कलर देना है वो आप दे सकते हो। डेटा लेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर डेटा लेबल इज ऑलवेज ऑन एंड विथ बोल्ड, ठीक है, यहाँ पे। और डिस्प्ले यूनिट, नाउ यू विल सी हियर इट इज शोइंग इन 1 मिलियन, 0 मिलियन, 0 मिलियन, और ये जो फोर्थ वैल्यू तो दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? सी इट इज वैल्यू इज देयर, 62,700 वैल्यू इज देयर, बट ये दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि डिस्प्ले यूनिट हमने मिलियन में अभी, तो मेक श्योर ये थाउजेंड्स में, ठीक है। और आप इसको ऐसा बड़ा भी कर सकते हैं, देखिए अभी वो दिखा रहा है आपको, ठीक है। हाँ, एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर शोइंग डेटा लेबल्स ऑन 9 नंबर फॉन्ट, to make sure for every visual on that page or any other page the 9 font visual is only there, okay, 9 मतलब ये जो नंबर है उतना ही होना चाहिए उसका साइज, 9 size it should be there, and even if you are passing slicer make sure 9 is only there, नहीं तो क्या होगा, एक स्लाइसर पे 9 का फॉन्ट दिखा रहा है, मतलब मैं आपको एक दिखाता हूँ अभी, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सी रियल टाइम प्रोजेक्ट में ना क्लाइंट या क्यूए टीम ऑब्जर्वेशंस लेके आती है, फिर ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ एक रैंडम ऑब्जर्वेशन क्या आता है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एक डेट था, हाँ, क्लोज डेट, ठीक है, और यहाँ पे opportunity created, ठीक है। So we are having these two filters right now. I am just showing you in real time project, this thing what I am showing, it was not a part of our project, so just I am showing you. So we have passed two slicers, okay. So first of all check that whether the board data type is date only. So we have seen that both data types are date only. तो यहाँ पे रियल टाइम प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, स्लाइसर सेटिंग में जाके इसको बिटवीन नहीं होता, ये ड्रॉप डाउन होता है, ठीक है, ऐसा ड्रॉप डाउन होता है, ओके। और ये कभी भी सॉर्ट असेंडिंग नहीं, डिसेंडिंग होता है, मतलब जो लेटेस्ट डेट है इट विल शो यू ऑन लेटेस्ट डेट, लास्ट डेट, सी नाउ 9/21 is our last date, so it will show on this. Same way do with this also, other slicer, ठीक है, ड्रॉप डाउन एंड देन हियर सॉर्ट डिसेंडिंग। तो अभी ये स्लाइसर पे आप अगर देखोगे ये वैल्यूज दिख रहा है आपको, ये कितना है, 12 है इसका, ओके, और ये इसका कितना है, इसका 22, नहीं 22 बहुत हो गया, 16, ठीक है। अभी आपने फॉर एग्जांपल एक रिपोर्ट बनाया है, और ये दो स्लाइसर्स इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है, क्लाइंट को ये रिपोर्ट सेंड किया है, या फिर क्यूए वैलिडेशन टीम को ये रिपोर्ट, यू हैव सेंड दिस रिपोर्ट, ओके। So in that case, what they will do now, they will come with one observation, and if client is coming with these types of basic observation ना, make sure you will have problem, okay। तो ये स्लाइसर है फर्स्ट, यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट है 12 का, और यहाँ पे देखिए बड़ा वाला है, तो ये दिखने को बहुत गलत दिख रहा है, आपको भी पता है, क्लाइंट ये आपका रिपोर्ट एक्सेस कर रहा है, यहाँ पे ऊपर दो स्लाइसर्स है, ही इज हैविंग, वी हैव शोन टू स्लाइसर्स, ओके, एंड फॉर फर्स्ट स्लाइसर्स व्हेन ही इज ओपनिंग ना, ही इज गेटिंग फॉन्ट ऑफ 12, 13 जो भी है छोटा, एंड फॉर अदर स्लाइसर इट इज गेटिंग बिग। तो ये बहुत गलत चीज है, ये ऑब्जर्वेशन आती है, ठीक है, रियल टाइम में होता ही है, पावर BI डेवलपर से गलती होता है, या फिर कभी कभी क्या होता है, इस पेज पे हमारा 12 फॉन्ट होता है और यहाँ पे कुछ तो दूसरा फॉन्ट होता है, तो वो भी एक ऑब्जर्व किया जाता है, ओके। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखना है रियल टाइम में, ओके। सो लेट्स स्विच बैक टू आवर रिपोर्ट, हम इसकी फॉर्मेटिंग कर रहे थे। कभी भी ये दो ऑप्शन है ना,
मेक श्योर विजुअल बॉर्डर और शेडो ऑन हो रहा है, स्पेशली कार्ड विजुअल उस पे तो होना ही चाहिए। हम इसकी ये देंगे, टाइटल देंगे एम्प्लॉयज बाय रीजन। ठीक है, इसको साइज भी बढ़ा सकते हैं थोड़ी, इसकी टाइटल है ना। ठीक है, बैकग्राउंड कलर सब टाइटल की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, डिवाइडर की भी कोई जरूरत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लगाते सब टाइटल की तो जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये विजुअल जो हमें क्लाइंट ने बोला था, या फिर क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी, वो हमने फुलफिल की है। पहली, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बाय रीजन। ठीक है, यहाँ पे कितना वैल्यू दिखा रहा है, 130 1033 7 के, यहाँ पे 289 के और 123। तो ये करेक्ट वैल्यू है क्या, हम अभी चेक करेंगे। ठीक है, जो हमने डेटा से लिया है, तो कहाँ पे डेटा पे चेक करेंगे हम। तो हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट आई गेस रीजन, हाँ रीजन था, देन सम था, और उस कॉलम का नाम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज था। हाँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज था। जो भी आपको एलियास वगैरह देना है वो दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं होता। फ्रॉम अकाउंट्स टेबल, यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन यू आर राइटिंग क्वेरी ना, मेक श्योर योर कनेक्शन इज देयर। ठीक है, आपका जो डेटाबेस है, यहाँ पे देखिए मेरा डेटाबेस XYZ है, दैट इज ओनली सिलेक्टेड हियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट डेटाबेस, इन विच डेटाबेस यू आर वर्किंग ना, इट शुड बी सिलेक्टेड दैट ओनली हियर। ठीक है, फ्रॉम अकाउंट्स एंड देन ग्रुप बाय रीजन है। यहाँ पे कभी भी एक चीज सिंपल मैं आपको एसक्यूएल की बताता हूँ, जो सिलेक्ट स्टेटमेंट में होगा ना वही ग्रुप बाय में होगा। ओके, ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका के लिए 1337400। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना दिखा रहा है, 1337400, करेक्ट। अभी ये EMEA के लिए 28900, और इसके लिए 122500। ओके, 289,000 और 1225। ओके, सो ये जो पहला विजुअल है, द फर्स्ट विजुअल इज टोटली परफेक्ट व्हाट क्लाइंट हैज आस्क फ्रॉम अस। ओके, क्लाइंट की जो आस्क है वो परफेक्टली हमने यहाँ पे पास की है। इस पे आप विजुअलाइजेशन पे काम कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कैटेगरी लेबल्स, हाँ इसको एक बोल्ड करो यहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका वगैरह। ठीक है, और ये जो व्हाइट है, इसको आप थोड़ा ये कलर लगा सकते हो। ठीक है, और डेटा लेबल को भी हम्म ठीक है, बट मेक श्योर अभी यहाँ पे आपको इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छा नहीं दिख रहा इस, थोड़ा फेंट कलर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो द फर्स्ट विजुअल इज टोटली एज पर व्हाट क्लाइंट हैज आस्क्ड अस, वी हैव क्रिएटेड दैट एंड आल्सो वी हैव डन डेटा वैलिडेशन आल्सो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड विजुअल, वांट टू सी प्रोडक्ट नेम बाय बजट ऑन डेट ऑनवर्ड्स 2021। ओके, ठीक है, उससे पहले मुझे एक आपको ये भी दिखाना है, कार्ड्स थे वो, हम वो कार्ड दिखाएंगे टॉप वन पे। ठीक है, ये एक कार्ड है। ये जो रिक्वायरमेंट है ये मैंने BRD में नहीं लिखी, ये सिर्फ मैं आपको ओरली दिखाना चाहता हूँ, वो दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट्स बेसिक आती है।
ठीक है, तो उनको क्या देखना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे अकाउंट ओनर जो है। ओके, सो अकाउंट ओनर यहाँ पे पास करेंगे, विजुअल लेवल फिल्टर फर्स्ट देखना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे। तो अगेन अकाउंट ओनर यहाँ पे पास करेंगे, बेसिक फिल्टरिंग में टॉप एन वन और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, अप्लाई फिल्टर। हमने क्या किया, उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट वाज they want to see the number one top one account owner on basis of number of employees. Okay, top one account owner on basis of number of employees, the account owner which have provided more number of employees, ये उनको देखना था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे विजुअलाइजेशन पेन में वी हैव पास्ड अकाउंट ओनर। ठीक है, वंस अगेन आई विल शो यू, वी हैव पास्ड दिस अकाउंट ओनर हियर। ओके, then we are working on visualization pane. There are visual level filter. Okay, so there are three levels of filter: visual level filter, page level and report level. So here is the first one, visual level filter. So we have passed account owner here in visualization pane. Again we will pass in visual level filter here. Then we will select on this drop down, this top and bottom is also there, huh? Okay, so right now we have to show on basis of top only. So top and one and by वैल्यू में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, खत्म बात। और ये जो दूसरा यहाँ पे था, दूसरे पे क्या दिखाना है, एजेंट पे हमें दिखाना है। ठीक है, रिजोल्यूशन मिनट, अप्लाई फिल्टर। ठीक है, इस प्रकार से भी रिक्वायरमेंट आती है, टॉप वन टॉप फाइव। अभी रैंकिंग का मैं भी बताने वाला हूँ आपको इसी वीडियो में। तो टॉप वन बॉटम वन भी आता है। अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि हमें बॉटम वाला जिसने हमें सबसे कम का प्रॉफिट वगैरह दिया, तो ऐसे करके बॉटम से आप सिर्फ कर सकते हो। तो ये जो संजय शाह है, तो ये सबसे बॉटम में है, जिन्होंने मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत कम प्रोवाइड किया। और टॉप वन में कौन है, ये है एनी। तो अगेन वी विल डू सम एडवांस लेवल ऑफ फॉर्मेटिंग हियर, call out value bold, display unit is okay, category label bold, okay, make sure again this is on, this both, ये दो ऑप्शन ऑन ही रखते जाओ कभी भी। और ये सेम फॉर्मेटिंग अगर हमें देनी है, तो नो नीड टू डू एवरी टाइम मैन्युअली, जस्ट क्लिक ऑन दिस विजुअल फॉर्मेट पेंटर एंड क्लिक हियर, दैट्स इट। ठीक है, एवरी टाइम करते नहीं बैठने का कभी भी, ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क। हमने यहाँ पे इसे टाइटल नहीं दिया, यहाँ पे ही हम चेंज करेंगे, क्योंकि ये फिर वो बहुत बड़ा हो जाता। ठीक है, यहाँ पे चेंज करो, एंड फर्स्ट एजेंट ऑन बेसिस ऑफ, ठीक है, ऐसे टाइटल देते तो फिर यहाँ पे एक आ जाता लाइन, तो दिखने के लिए अच्छा नहीं दिखेगा। Now coming to our second third requirement, want to see product name by budget on date onwards 2021. Okay, तो इस केस में हम टेबल पास करेंगे, want to see product name,
मैं आपको इस वीडियो में एडवांस डैक्स वगैरह भी आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट नेम ऑन बेसिस ऑफ बजट बोला है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एक टोटल बजट का डैक्स बनाया, कुछ नहीं है, सिर्फ सम ऑफ अपॉर्चुनिटीज बजट, ये जो अपॉर्चुनिटीज टेबल है उसमें बजट कॉलम है उसका सम लिया, दैट्स इट। और यहाँ पे ये एक्सप्लिसिटली मेजर बनाया, आप इम्प्लिसिटली भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पास किया और यहाँ पे सम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ है। ओके, वेदर यू कैन डू एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली, कोई इशू नहीं है उसमें। तो ये प्रोडक्ट नेम पे सम उन्होंने दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए ये डेटाबेस का नेम आया, तो मेक श्योर ये हाइफन यहाँ से आप निकाल दो प्रॉपरली। देखिए अभी प्रॉपरली दिखा रहा है, तो आप इसे हम फॉर्मेटिंग करेंगे। और 2021 के ऑनवर्ड्स उन्होंने बोला है, ओके, तो वो भी हम करेंगे प्रॉपरली। बोल्ड किया वैल्यूज को, ये ग्रिड लाइंस मेक श्योर यू ऑन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और इसको ब्लैक कलर का भी डार्क ब्लैक का भी सिलेक्ट करने का। ओके, देखिए अभी कितना अच्छा दिख रहा है वो। और विड्थ आप 2 भी कर सकते हो। नहीं, 2 अच्छा नहीं दिख रहा, छोटा टेबल है। हम्म, बॉर्डर पे ये भी ब्लैक ही लेंगे आप। ओके, ऊपर वाली लाइन। नाउ कमिंग टू कॉलम हेडर्स, कॉलम हेडर्स को बोल्ड और थोड़ा बढ़ाने का कॉलम हेडर्स। ओके, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। ये एक दो ऑप्शंस कभी भी ऑन रहने के। Okay, now coming to our requirement, what it is showing by date onwards 2021। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, इस पे 2021 का onwards दिखाना ना। तो अरे यार कुठे गेली, जस्ट वेट ए मिनट। Hello everyone, welcome back. There was some technical error at my end, so I have to pause the video. Okay, so let's resume the video again. So as per our third requirement, we want product name on basis of budget. That too, the date should be only for 2021। मतलब हमारे पास जो डेट होती है, मतलब हमारे पास जो डेट है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वेरी क्लोज, हाँ, सी वी आर हैविंग डेट फ्रॉम 2019 टू 2021। ओके, so as per client what he is saying na, in this visual he want to see the budget on basis of product but only for 2021, that's it. He don't want to see on 2019 or 20 also. So what we will do now, see we are passing here date, then we will select advanced filtering is on or after date, 1st January. Okay, apply filter is on after. Okay. Okay, so from 1st of January 2021 it is now showing. Okay, by mistakenly I have selected 2023. So we are having data from 2019 to 2021 na? So I have by mistakenly selected 2023, so it was not showing because we are not having date for means we are not having data for that dates, because we are not having that dates only in our data. ठीक है, so this is the third requirement of client, product name. uh, he needs to see budget on basis of product name, that too for 2021.
Okay, now let's go to our fourth requirement. List of campaign names by budget with ranking. ठीक है, list of campaign names by budget with ranking. Now let's take this table one more. Campaign name and then budget. We will select budget. Okay, we will again pass this formatting here for this visual as well. ठीक है, अभी यहाँ पे रैंकिंग उनको दिखानी है तो हम एक टैक्स बनाएंगे इस केस में. ठीक है, अभी डैक्स के लिए ना मेक श्योर एवरी टाइम व्हेन यू वांट टू क्रिएट मेनी डैक्स ना जस्ट सिलेक्ट दिस न्यू टेबल, क्योंकि सारे डैक्स देखो इस टेबल के नीचे नहीं कभी बनाने के, ऐसे बाजू में रहने चाहिए. ठीक है, डैक्स मेजर्स एंटर. और जितने भी आप डैक्स बनाओगे, देखिए मैंने कुछ कुछ ऐसे व्यूज थे जहां पे 30-40 डैक्स बनाए थे, तो इसके नीचे ऐसा नहीं मैंने कुछ किया था. ठीक है, तो ऐसा सेपरेट जब डैक्स मेजर हो गया ना तो आपको जितने भी आपने मेजर्स बनाए सारे आप एक जगह पे एक्सेस कर सकते इन दैट केस. नाउ कमिंग टू दिस डैक्स न्यू मेजर. ओके, रैंक, इसको नाम देंगे रैंक एक्स. हाँ, रैंक एक्स. देन ऑल सिलेक्टेड. और हमें कैंपेन नेम चाहिए ना. कैंपेन नेम पे हम दिखा रहे. और यहाँ पे टोटल बजट. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो आपने ये किया है पैरेंथेसिस क्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे क्लोज करना नहीं तो वो एरर दिखाएगा. ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैं क्लोज नहीं कर रहा. देखिए यहाँ पे एरर दिखाएगा और एंटर करने के बाद नीचे एरर दिखाएगा, तो यहाँ पे क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. And then we will again pass this. अरे देखिए अभी यहाँ पे मैंने गलत. ओके, अगेन वी विल लर्न सम न्यू थिंग. यहाँ पे देखिए कैंपेन नेम कहाँ का पास किया है, अपॉर्चुनिटीज टेबल का. ओके, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज टेबल का. रियल टाइम में भी देखिए ऐसी मिस्टेक वगैरह आपसे होती है. और यहाँ पे कैंपेन नेम्स दो टेबल में, अपॉर्चुनिटीज में एंड ऑल्सो वी आर हैविंग इन कैंपेन्स टेबल ऑल्सो. सो आई हैव मैप्ड रॉन्ग हियर. सो इन दिस केस अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, because budget column we are having in this opportunities table ना. now it will show correct properly. ठीक है, देखिए आपने देखा. और इसको सॉर्टिंग करेंगे. ओके, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, मतलब ट्विटर जो है उसका फिर नंबर ये है, मार्केट ट्रेंड्स न्यूज़लेटर का ये है. ठीक है, अभी इसके हम वैलिडेशन भी करेंगे वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो पावर बीआई में भी, अगर विजुअल में करेक्ट दिखा रहा है क्या. और वी विल ऑल्सो चेक इन आवर एसक्यूएल ऑल्सो, और डेटाबेस. ये कैंपेन नेम था ना, campaign name, and we have passed budget. Okay, so we will take card. ठीक है, और budget we have passed here. So now click on this Twitter. कितना दिखा रहा है, 6825, एकदम परफेक्ट है. ओके, नाउ मार्केट ट्रेंड्स के लिए 840 के, यहाँ पे कितना दिखा रहा है 840 के.
ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप यूनिट टेस्टिंग विद इन पावर बीआई रिपोर्ट भी कर सकते हो। ये तो करेक्ट ही दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है, बट स्टिल कभी कभी मेजर वगैरह रॉन्ग होने की वजह से भी इश्यू आते हैं। तो ऐसी प्रॉपरली सिर्फ जस्ट यूज टू विजुअल्स, स्लाइसर एंड कार्ड, दैट्स इट, एंड यू कैन चेक। ठीक है, अभी ये हम एसक्यूएल में भी चेक करेंगे whether it is correct or not. Select sum of, सम के बजट था उसका नाम, हाँ बजट फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज। देखिए यहाँ पे नीचे आता है जस्ट सिलेक्टेड वेर कैंपेन इज इक्वल टू ट्विटर। ओके, 628625 कितना दिखा रहा है, 628625। ओके, मंथली न्यूज़लेटर का एक देखते हैं। ओके, मंथली न्यूज़लेटर में हमारे यहाँ पे 4021625, और यहाँ पे कितना दिखा रहा है, सिलेक्ट सम ऑफ फ्रॉम वेयर कैंपेन नेम। ओके, हम डेटा MONTHLY, MONTH, देखिए नल क्यों दिखा है, क्योंकि एसक्यूएल इज द मोस्ट केस सेंसिटिव। ठीक है, वहां पे वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पे नहीं दिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने एच मेरा रह गया, अभी ये प्रॉपरली हमें वैल्यू दिखाएगा। देखिए ऐसी ऐसी मिस्टेक होती है रियल टाइम में भी। नाउ चेक 4021625, 4021625। ओके, तो ये एकदम परफेक्ट, तो ये विजुअल एकदम 2021 पे उन्होंने बोला ये परफेक्ट किया, ये दोनों भी परफेक्ट हो गए। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट विजुअल। ठीक है, हम एमटीडी क्यूटीडी वाईटीडी कैलकुलेट करेंगे। एमटीडी बजट हमारे क्लाइंट ने बोला है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देखिए, एमटीडी क्यूटीडी वाईटीडी ऑन बेसिस ऑफ बजट चाहिए उन्हें। तो आप क्या करोगे, टोटल एमटीडी पास करने का, ठीक है, उसके बाद फिर आपको बजट पे दिखाना है, टोटल बजट, एंड देन फिर डेट, डेट कॉलम हम पास करेंगे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड ऑन। ठीक है, ये यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी के लिए यूज करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, एमटीडी बजट हमने मेजर बनाया, नाउ वी विल क्रिएट फॉर क्यूटीडी मेजर, दैट्स इट, जस्ट कॉपी पेस्ट, rename the measure and just use another DAX instead of total MTD, use total QTD, that's it। मैं MTD QTD YTD क्या आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए MTD मतलब मंथ टू डेट, ठीक है, MTD मतलब मंथ टू डेट, QTD मतलब क्वार्टर टू डेट, और YTD मतलब ईयर टू डेट। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आज 12 अगस्त है ना, तो एमटीडी क्या हो गया, 1 अगस्त टू 12 अगस्त। ठीक है, क्यूटीडी क्या हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो जुलाई में थर्ड क्वार्टर आपका स्टार्ट हो गया, तो क्यूटीडी क्या हो गया, 1 जुलाई टू 12 अगस्त। और वाईटीडी क्या हो गया, 1 जनवरी टू 12 अगस्त। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एमटीडी क्यूटीडी वाईटीडी। एमटीडी मतलब मंथ टू डेट, 1 अगस्त टू 12 अगस्त। क्यूटीडी मतलब 1 जुलाई टू 12 अगस्त, एंड वाईटीडी मतलब 1 जनवरी टू 12 अगस्त। तो ऐसे, तो हम यहाँ पे ऐसे 3 कार्ड पास करेंगे। ठीक है, इसमें पहले मैं एमटीडी,
और अभी आपको तो एक चीज समझ में आई हुई होगी कि एमटीडी की वैल्यू कभी भी छोटी रहेगी और क्यूटीडी की बड़ी, क्योंकि एमटीडी में ओनली मंथ टू डेट का वैल्यू है, मतलब एक 15 दिन का, एक महीने का ज्यादा से ज्यादा। क्यूटीडी में क्वार्टर का है, 2 महीने का, 3 महीने का। और वाईटीडी में पूरे ईयर का है, तो इस वजह से वाईटीडी की वैल्यू बड़ी होगी। देखिए एमटीडी की वैल्यू कितनी है, 2.13 मिलियन डॉलर्स। क्यूटीडी की 4.81 और वाईटीडी की 12.94, मतलब तकरीबन $30 मिलियन ही है। ओके, तो आपने कैसे मेजर बनाया था, सिर्फ यहाँ पे देख सकते हो, टोटल एमटीडी किया और टोटल बजट क्या है। टोटल बजट का हमने एक मेजर बनाया था, आपको मैं दिखाता हूँ वंस अगेन। देखिए सम ऑफ बजट, दैट्स इट। बजट का जो कॉलम है अपॉर्चुनिटीज टेबल में, उसकी हमने सिर्फ सम ली है। ओके, और ये एमटीडी फिर ऐसे बनाया, और वैसे ही आपको क्यूटीडी वाईटीडी बनाना है। सिर्फ टोटल एमटीडी डैक्स की जगह पे टोटल क्यूटीडी यू हैव टू यूज, एंड फॉर टोटल वाईटीडी ओनली टोटल वाईटीडी यू हैव टू यूज इन दैट केस। ओके, now also one more thing you will check here, past 3 months budget and respectively others, मतलब पास्ट 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के, 5 मंथ्स के, 6 मंथ्स के, ऐसे एक उनको बजट्स देख लें। ठीक है, तो अगेन वी विल मेक मेजर। देखिए यार टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसा नाम देख सकते हो, कैलकुलेट ऑफ टोटल बजट। यहाँ पे आप सम ऑफ अपॉर्चुनिटीज और वो कॉलम भी पास कर सकते हो, बट मेक श्योर आप मेजर पास करोगे, मेजर बना के, सिंपल सम के मेजर्स बना के रखने को, और वो मेजर ही जब आप ऐसे मेजर बड़े बड़े बनाओगे उसमें पास करने के। ठीक है, तो आपको पास 3 मंथ्स तो डेट्स इन पीरियड ही बेस्ट रहेगा। अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड ऑन, देन फिर लास्ट डेट पे हम फिर से अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड ऑन ही देखेंगे, और यहाँ पे -3 मंथ। ठीक है, यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, अगेन वी हैव नॉट क्लोज द कॉलम, नाउ इट विल शो प्रॉपरली। उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि पास्ट 3 मंथ्स के लिए बजट क्या है। ठीक है, परफेक्ट 3 मंथ्स, मतलब आज 12 अगस्त है, तो फिर जुलाई जून, 12 मई से 12 अगस्त तक का उनको पास 3 मंथ्स का देखना है। इन केस ऑफ क्यूटीडी क्या था, वो 1 जुलाई से था, क्योंकि जुलाई में क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे 12 मई से 12 अगस्त तक, ऐसे ही वो चीज, इस वजह से देखो वैल्यू भी बड़ी आई है यहाँ पे। We will also check it for, we will also create it for past 5 months, 6 months, like this also. 12, और यहाँ पे -12 करो।
ठीक है, -1 ईयर किया तो भी चलेगा, कोई विषय नहीं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है ऐसा। तो हम चेक भी करेंगे ये। ठीक है, सिलेक्ट सम ऑफ बजट एज क्यूटीडी बजट, या फिर पास्ट 3 मंथ्स करेंगे, पास्ट 3 मंथ्स फ्रॉम opportunities where opportunities created on greater than is equal to 2021 के लास्ट डेट क्या है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड ऑन ये कॉलम हमने यूज किया ना, 25/5/21। तो ये स्टार्ट डेट है 25/5, पास्ट 3 मंथ्स का देख रहे हैं हम। हाँ, अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड ऑन, एंड देन यहाँ पे वो डेट आएगी लास्ट डेट वाली। एट 047,875। कितने, सिलेक्ट सम ऑफ बजट एज पास 3 मंथ्स फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज वेयर अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड ऑन 21/2, 25/2 एंड 25/2 और यहाँ पे 25/5। इज ऑन आफ्टर और इज ऑन बिफोर, ये स्टार्ट डेट और ये एंड डेट है। ठीक है, कॉपी पेस्ट, दूसरा कोई फिल्टर है क्या यहाँ पे, क्लियर ऑल फिल्टर्स।
कॉपी the date you are present sign of selection. Okay. 8047875 ठीक है, एकदम परफेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है। देखो मैच हो रहा है 804782875। ओके, आप ऐसे भी वैलिडेशन कर सकते हैं। ये आपने देखिए डेटा व्यू से मैंने फिल्टर लगाया, वहां से डेटा को कॉपी किया और एक्सेल में चेक किया, मतलब हमारे पावर बीआई में करेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो अभी और एक मैं चीज आपको सिखाऊंगा। ओके, अभी यहाँ पे देख सकते हो आप कितने फिल्टर, मतलब विजुअल्स वगैरह कार्ड्स हमने पास किए। देखिए यहाँ पे तकरीबन 6 कार्ड से। ओके, इन दैट केस तो कभी कभी क्या होता है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ एक चीज की रियल टाइम में अगर फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत कार्ड्स आपने यूज किए होगा, उसमें उस वजह से थोड़ी पेज में बिल्कुल भी जगह नहीं रहती, और फिर क्लाइंट का ऐसे भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि 2 या 3 पेज से ज्यादा रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो उस केस में आप क्या करोगे? ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी 6 ही कार्ड्स है, बट आपके रियल टाइम में फॉर एग्जांपल 15-20 कार्ड्स है, आपने पास्ट 3 मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ऐसे कैलकुलेट किए, एमटीडी क्यूटीडी वाईटीडी ऐसा सब कैलकुलेट किए, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो आप इन्हें डायनामिक फिल्टर वगैरह बना सकते हो। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे बनाने का, बहुत सिंपल होता है। डेटा व्यू में जाने का, टेबल पे सिलेक्ट करने का। ओके, नहीं, हम एंटर डेटा से ही बना देंगे, और सिंपल मैं बताता हूँ। उसको टेबल को नेम इंडियन, कॉलम को पैराडाइज। ठीक है, फिर ये जितने भी विजुअल्स कार्ड्स है आपके, यहाँ पे उसके नेम डालेंगे। एमटीडी बजट, ओके, क्यूटीडी बजट, वाईटीडी बजट, पास्ट 3 मंथ्स। ओके, इसका नेम यही था ना? हाँ, इसको लोड किया हमने। अभी मैं ये आपको सारे विजुअल्स यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, आपने एक नया टेबल ये बना दिया। फिर आपको एक नया मेजर बनाना है, सिलेक्टेड वैल्यूज है, उसका नेम भी हम वही दे देंगे। ओके, सिलेक्टेड वैल्यू, एंड देन फिर सिलेक्ट वैल्यू, टेबल नेम, कॉलम नेम आपको पास करना है, आपने जो बनाया है वो नया टेबल से, ये आपने पास किया। एंड देन फिर स्विच का मेजर एक बनाएंगे, यहाँ पे स्विच डैक्स पास करो आप। एंड देन फिर जो आपने मेजर अभी बनाया है सिलेक्टेड वैल्यू का, और फिर जो आपके मेजर्स के नाम है वैसे ही आपको प्रॉपरली लिखना है यहाँ पे। ठीक है, एमटीडी बजट आप यहाँ पे भी आगे लिख सकते हैं ऐसे, क्यूटीडी बजट, देन फिर आपको अगेन, ओके, देन वाईटीडी बजट, पास्ट 3 मंथ्स,
पास 3 मंथ्स का मेजर आपको पास करना है, ठीक है। एंटर, बात खत्म। फिर इस केस में आपको क्या करना है, जस्ट टेक वन स्लाइसर एंड देन वन कार्ड। ठीक है, एक स्लाइसर और एक कार्ड आपको लेना है। स्लाइसर में आप जस्ट पास करो ये जो आपका कॉलम नेम है वो, और कार्ड में आप पास करो ये स्विच का मेजर, जहां पे जितने भी आपने मेजर्स पास बनाए हैं वो सारे पास किए। ठीक है, इसमें 10 15 20 कितने भी कर सकते हो आप। then just pass it. Okay, then when you will select mtd budget, it will show value of mtd budget, see, check। then when you will select value of qtd budget, वो qtd budget का जो वैल्यू है वो दिखाएगा। ठीक है, आप YTD में सिलेक्ट करोगे YTD का दिखाएगा, पास 3 मंथ्स के लिए पास 3 मंथ्स का दिखाएगा। अगर मेरे रियल टाइम प्रोजेक्ट में मैं आपको बताता हूँ व्हाट सिनेरियो आई फेस ना इन दिस केस। तो हमने क्या किया था, एक बहुत से मतलब ऐसे काउंट थे हमारे यहाँ पे, और एक 8-10 लोकेशन थे, मुंबई दिल्ली, जो मतलब फाइनेंस प्रोजेक्ट था, और मुंबई तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना इन दैट केस। तो मुंबई वॉज देयर, दिल्ली वॉज देयर, देन अगेन चेन्नई वगैरह, ऐसे 6-7 थे, ऑफिसर्स वगैरह थे। तो हमने बहुत ऐसे हर एक ऑफिसर काउंट के लिए प्रॉपरली बनाया था, और क्लाइंट को ऐसे टेबल में नहीं चाहिए था, वो बोल रहे थे हमको ऐसा प्रॉपरली कार्ड में चाहिए। इन दैट केस टेबल में तो बहुत अच्छा दिखता, बट क्लाइंट की कभी कभी हिपोथेटिकल रिक्वायरमेंट होती है। सो इन दैट केस यू हैव टू शो एज पर देम ओनली। एंड अगेन फिर वो क्लाइंट ने क्या बोला, नहीं ये बहुत सारे कार्ड है, हम आप एक फिल्टर में ही दे दो हमें। तो उस केस में हमने रिसर्च वगैरह किया था, और फिर ये हमने बनाया था। ठीक है, इसमें खाली मैंने 4 मेजर्स पास किया, आप 10 15 20 कितने भी पास कर सकते हो। जस्ट आपको आपका ये जो कॉलम है ना, ये जो कॉलम है यहाँ पे फिर वो लिस्ट ऐड करना पड़ेगा, और केस सेंसिटिव है, जो आपके प्रॉपरली जैसा है मेजर वगैरह ना वही वहां पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो मैंने ये जो रिक्वायरमेंट था, कस्टमाइज रिमोट रिपोर्ट प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत कार्ड्स वगैरह थे ना, तो फिर जस्ट हमने ऐसे कस्टमाइज आप प्रॉपरली से कर सकते हो ये डायनामिक फिल्टरिंग से, स्विच यूज करके। ठीक है, तो देखिए आज हमने क्या क्या देखा। पहले तो क्लाइंट के जो सारे रिक्वायरमेंट्स थे हमने फुलफिल किया। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बाय रीजन, वांट टू सी प्रोडक्ट नेम बाय बजट डेट ऑनवर्ड्स 2021, लिस्ट ऑफ कैंपेन नेम बाय बजट विद रैंकिंग, ये भी किया। क्यूटीडी वाईटीडी बजट के हिसाब से वो भी किया। ठीक है, देन पास्ट मंथ 3 मंथ बजट वगैरह ये सब। तो मैं फिर एक बार आपको मेजर्स दिखाता हूँ जस्ट। ठीक है, ये आप मेजर्स प्रॉपरली देखिए, टोटल एमटीडी। ठीक है, एमटीडी क्यूटीडी वाईटीडी मेजर्स मतलब मंथ टू डेट, क्वार्टर टू डेट, ईयर टू डेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पास्ट 3 मंथ्स का वगैरह ये। मैं आपको एक चीज अभी यहाँ पे प्रॉपरली बताता हूँ टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, टुडेज डेट इज 12 ऑफ अगस्त। तो एमटीडी क्या हो गया, 1 अगस्त टू 12 अगस्त। क्यूटीडी क्या हो गया, 1 जुलाई टू 12 ऑफ अगस्त। लास्ट डेट 12 अगस्त ही रहेगा। ठीक है, और वाईटीडी, वाईटीडी क्या हो गया, 1 जैन टू 12 अगस्त। मैं इसको बड़ा करता हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछते हैं ये क्वेश्चन। और देन फिर पास्ट 3 मंथ्स, ये क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 ऑफ मे टू 12 ऑफ अगस्त। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट 3 मंथ मतलब एग्जैक्टली दैट प्रीवियस 3 मंथ्स डेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल पास्ट
5 मंथ्स होगा तो फिर क्या होगा 12th ऑफ मार्च टू 12th ऑफ अगस्त। तो ये एक आप कंफ्यूजन मत होने दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसको पहले बोल्ड करता हूँ, स्लाइसर हेडर बोल्ड, और इसकी साइज बढ़ाता हूँ, बड़ा करता हूँ इसकी। तो ये देखिए, ये आज हमने हमारे प्रोजेक्ट में देखा, डेटा वैलिडेशन प्रॉपरली हमने चेक की है, whether it is for number of employees, for this campaign name, again for this MTD वगैरह। एक्सेल में भी मैंने आपको दिखाया है कैसे डेटा वैलिडेशन वगैरह हम सब करते हैं। ओके ठीक है, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं चेक करता हूँ अगर कुछ रह गया है क्या हमें जो आज बताना था वो। ओके ठीक है, जो जो डिसाइड किया था एवरीथिंग आई हैव शोन यू प्रॉपरली। ओके देन अगेन विथ थर्ड पार्ट आई विल कम विथ अदर रियल टाइम सम ऑफ द सिनेरियोज, जो मतलब क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स वगैरह होते हैं उस केस में। ये देखिए, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी रियल टाइम में, जब हमने प्रोजेक्ट किया तब हमें इश्यू आया कि बहुत सारे कार्ड्स वगैरह, तो हमने ये सॉल्यूशन के साथ आ गए। ठीक है, तो मैंने आपको सारा बीआरडी डॉक्यूमेंट वैलिडेशन और किस प्रकार से होता है, अभी ये यहाँ पे ठीक से मैंने ज्यादा किया नहीं है, बट रियल टाइम में हम बहुत प्रॉपरली ये सब अलाइनमेंट जो इसे बोलते हैं वो हम प्रॉपरली अलाइनमेंट करते हैं। ओके, तो अगर आपको कुछ भी डाउट होगा ना, मेक श्योर यू आर कमेंटिंग विद इन 1 or 2 hours, आई विल रिप्लाई यू। ओके, एंड इन केस follow us on social media, especially Instagram, Telegram, and subscribe our channel and press bell icon for all upcoming videos. Okay, thanks a lot everyone for watching till end.